Today we are going to look into the book of Jonah, very well-known book. Probably children who study in the first standard of Sunday school, they will be taught this story. So it's a very well-known story, but I believe that even a grown-up Christian has many things to learn from this. Even servants of God. I believe that more than other people, the servants of God has a lot to learn from this book. प्रभु का सेवकों को इसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए है। पहले मेरे जीवन के साथ जोड़ा हुआ एक घटना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 75 to 84 we were in I was in North India few years as a bachelor, then as a family, then 84 we returned to Kerala. 84 to 86, 2 years we were in Kerala. Then 87 we went back to वापस गुजरात में आया, नॉर्थ इंडिया में आया। वापस आने के लिए एक बहुत बड़ा घटना हमारे जीवन में हुआ। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस समय मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। 3 महीना मैं बिस्तर में ही था। 13 दिन मैं हॉस्पिटल में था। उस समय मेरे पास कुछ बाइबल कुछ नहीं था। ईश्वर मेरे साथ ऐसा बात कर रहा था, वर्तमान काल में जिंदा योना तुम है। You are the living Jonah now, of the present time. I wanted you in north, you are in Kerala. Decide. So after reaching home, I examined my life, I confessed my sins, I decided to return to north. Thus I am in Gujarat all these years. इधर 3 बातें मैं बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। God works in us, and God works through us, then God works for us. ईश्वर हमारे अंदर काम करते हैं। अंदर कुछ काम नहीं हुआ तो बाहर कुछ काम होने वाला नहीं है। ईश्वर अंदर हमारे अंदर काम करना चाहते हैं। ईश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं। ईश्वर हमारे लिए काम करते हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और ये दोबारा मैं नॉर्थ में आया, मेरा जीवन का एक रेस्टोरेशन था, पुनर्स्थापना था। मेरा समर्पण को और एक बार ईश्वर के सामने उसका रीडेडिकेशन ऑफ माय लाइफ, पुनः समर्पण हुआ था। इधर भी इस पुस्तक का की वर्स 3 का 1 है। दूसरी बार प्रभु का वचन योना के पास पहुंच गया। दूसरी बार योना के पास पहुंचा यहोवा का ये वचन। Second time the word of the Lord came to Jonah the second time. If this did not happen, this book would not have been there. यदि ये 3 का 1 में जो बातें हैं यदि नहीं हुआ तो ये पुस्तक भी बाइबल में नहीं होता। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है। हमारे जैसा कमजोर मनुष्य के साथ कैसा काम करना ईश्वर को मालूम है।
God is working with weak people, failing people, people with all kinds of weaknesses and shortcomings. None of us are perfect. Even after many, many years of life, there are failures and weaknesses and shortcomings. But praise God, our God is an expert. He knows how to deal with people who are failing, who make mistakes. That is one important lesson we learn from this book. Now I just want to show you the division of this book. William MacDonald, that commentator, has divided it in a very simple way. Disobedience, chapter 1. Deliverance, chapter 2. Declaration of God's message, chapter 3. Displeasure of Jonah or God in chapter 4. Or another way we can put it, rebellion of Jonah, chapter 1. Chapter 2, repentance of Jonah. Chapter 3, restoration of Jonah. Chapter 4, rebuking of God to Jonah. These are simple divisions. But one old division, what I wrote in my book many, many years before, probably some 40 years before, that I just want to read, and then we will go for the questions in the book of Jonah. Chapter 1, a disobedient prophet running away from God and punished. That is chapter 1. आज्ञा को उल्लंघन करने वाला प्रबोधक ईश्वर के उपस्थिति से भाग रहा है और उसका सजा उसको मिला. चैप्टर 1. Chapter 2, a repenting prophet running back to God and is delivered. मन फिराने वाला एक प्रबोधक ईश्वर के पास वापस दौड़ के आ रहा है और ईश्वर उनको बचाया. Chapter 2. Third, a restored prophet running with God and rewarded. पुनस्तापन हो गया हुआ एक प्रबोधक ईश्वर के साथ दौड़ता है और उसका प्रतिफल उसको मिला है. Chapter 4, an angry prophet running ahead of God and rebuked. एक गुस्सा करने वाला एक प्रबोधक ईश्वर के आगे दौड़ रहा है, ईश्वर उसको डांटा. So this is the division. This I almost always keep in my mind. When I sit somewhere, sometimes, and I don't have Bible with me, I do some Bible studies like this. I'll try to bring all this 4 points of 4 chapters and do a Bible study without opening the Bible. That we can do. Now, few things I just want to say from chapter 1, and then we will come to the questions. First thing is, this book ends with a question. Probably this is the only book ends with a question in the Bible. What is that question? We'll read chapter 4, verse 11. फिर यह बड़ा नगर नीनवे
जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? ओके, इधर योना को गुस्सा आया, वो जो झाड़ सूख गया, a plant is dried up. So God is asking him this question: plant is more important or people are more important? One plant for which you didn't do anything, that came up, then it is dried up. उसके कारण तुमको थोड़ा धूप लग गया, तुम बहुत गुस्सा कर रहा है, ऐसा है तो मेरा सृष्टि है, उन मनुष्यों के लिए मैं कुछ तरस ना खाऊं? Should not I be concerned about 1,20,000 people who are not able to discern between right hand and left hand, living in sin? God was concerned about. So Jonah was concerned about the plant, God was concerned about the people. Instead of plant, you can put something else in your in connection with your life. What is more important to you? No, I have brought that CT studs, that small wall text. I am going to paste it in front of my table here. That is like this. Many of you might have read it several times, which was there on my switchboard there in Ahmedabad. Just one life, it will soon be past. What is done for Christ will last. एक साधारण व्यक्ति नहीं बोला है, इंग्लैंड का बड़ा क्रिकेटर सीटी स्टड, such a rich man, he gave up everything. He decided to go to China as a missionary. जब जाते समय में अपना डिक्शनरी के अंदर ऐसा लिखा, just one life, it will soon be past. What is done for Christ will last. आज मैं और एक बार सबको याद दिलाना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट मेरा जीवन में इतना असर किया है, मैं चाहता हूं ये आपके जीवन में भी असर हो जाए. एक ही जीवन है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. अभी मैं समझता हूं मेरा शरीर कितना कमजोर हो रहा है, बहुत जल्दी जीवन पूरा हो जाएंगे. और इधर हम प्रभु के लिए क्या किया वो आनंद काल तक रहेगा, बाकी सब इधर खत्म हो जाएंगे. ये समझ के हमको जीने का है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस? Eternity is more important or the present is more important? People who are going to eternal hell is more important, or our present convenience and comforts are more important? We need to think about it very, very seriously. So the first thing is, this book ends with a question from God. God is asking Jonah, what is more important to you? Let us all examine our life and say what is more important to us. Yesterday we were reading Matthew's Gospel chapter 10. There the Lord Jesus says like this: if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of me. If you love your father or mother more than me, now, God is not saying that you should not love your father or mother. You should not love your
son or daughter, if you don't love, who else will love? You have the great responsibility to love them. It is there. But if you love them more than me, you are not worthy of me. मेरे लिए योग्य नहीं है, ये हमको समझने का। दूसरा बात इधर, ये एक सही घटना है। दिस इज a real story. It's not a fiction. Matthew's Gospel chapter 12 verse 40, यीशु मसीह यूना के बारे में बताया, जैसा यूना 3 रात 3 दिन उस मच्छी के पेट में था, वैसा मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के अंदर होगा। इसलिए यीशु मसीह इनके बारे में बताया, ये एक सही घटना है। दिस इज नॉट ए मैन मेड स्टोरी, इज अ रियल स्टोरी। तीसरा बात मैं बताना चाहता हूं, ये योना एक ऑनेस्ट आदमी था। जो हुआ उसके साथ वो ऐसा ही लिख लिया, ऐसा ही बोल दिया। उनको मालूम नहीं है योना खुद लिखा है और दूसरा उनका मुंह से सुन के ये लिखा है, हमको मालूम नहीं है। कुछ भी हो, योना उसके साथ जो हुआ है और उनको क्या सजा मिला है और ईश्वर के साथ उनका प्रतिक्रिया क्या था, ये सब ऐसा ही बता दिया, कुछ हाइड नहीं किया। हम समझते हैं लोग अपने बारे में बताते समय में जो कुछ अच्छा अच्छा बातें हैं वो बोलेंगे, उनका जीवन का कुछ गलती, कुछ पाप और उसके कारण उसको मिला हुआ कुछ सजा, ये सब छुपाने का कोशिश करते हैं। योना ऐसा नहीं किया। चौथा बात यह है, जब प्रार्थना करना था ये प्रार्थना नहीं किया, देरी से प्रार्थना किया, इसलिए उनको प्रार्थना करने को आता था। ये ध्यान से आप सुनो, बेटर टू प्रे इन द राइट प्लेस देन प्रेइंग इन द रॉन्ग प्लेस। सही जगह में प्रार्थना करना गलत जगह में प्रार्थना करने से अच्छा है, और गलत जगह में प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं करने से अच्छा है। बेटर टू प्रे इवन इन द रॉन्ग प्लेस instead of praying not. So Jonah prayed from fish belly. अभी प्रार्थना का पावर कितना है, प्रार्थना कैसा ईश्वर के पास पहुंचता है। यूना खुद कहते हैं, दो का दो ब्रदर। My prayer reached to 7 2 का 7। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। My prayer went up to you into your holy temple. कहां से प्रार्थना गया? इतना बड़ा एक मच्छी का पेट से ये प्रार्थना बाहर आया। समझ लो प्रार्थना का शायद पावर कितना ज्यादा है। और ये मच्छी का अंदर इतना बड़ा समुद्र के अंदर गहराई में था, वो पानी को पार करके बाहर आया। फिर इधर जो एयर है, हवा है, उसको पार करके उसके ऊपर चला गया। उसके ऊपर जो बादल है उसको भी पार करके ऊपर गया।
बाद में शून्याकाश स्पेस में गया, उसको भी पार किया। प्रार्थना बहुत पावरफुल है। यदि सच्चे दिल से जो प्रार्थना निकलता है, वो प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंच जाएगा, कहां से भी हो। समुद्र के गहराई में इतना बड़ा एक मच्छी का पेट से उसका प्रार्थना ईश्वर के उपस्थिति में पहुंच गया। प्रार्थना का पावर कितना ज्यादा है। मैं समझता हूं बहुत लोगों को प्रार्थना करने को नहीं आता है। प्रार्थना हमारे जीवन में कितना चमत्कार कर सकते हैं, बहुत लोग अनुभव नहीं करते हैं। दूसरे लोग जो प्रभु का सेवा में है, उन लोगों का जो ट्रिक्स है, अभी मैं एक आदमी को ऐसा एक मैसेज भेजना पड़ा, यू ओनली नो हाउ टू सेंड SMS एंड बेगिंग लेटर्स, you do not know how to pray, you do not know what is faith like. Now prayer is very powerful. God wants his people to experience and enjoy spending time with God. इसलिए यूना एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। अभी एक दो बात इसका आरंभ से बोल के फिर हम ये सवालों में आएंगे। शायद समय हमारे लिए कम है। राजेश भाई पहला अध्याय का 1 से लेके 4 तक पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। इधर से 3 बातें बोल के मैं सीधा सवालों में आऊंगा। पहला बात है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू जोना द सन ऑफ अमित्ताई। आवर गॉड इज अ स्पीकिंग गॉड। ईश्वर हमारे साथ बात करते हैं। ये हमारा ईश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है। इन समयों में ईश्वर ज्यादा बाइबल के द्वारा ही हमारे साथ बात करते हैं। बाइबल पढ़ते समय, बाइबल सुनते समय ईश्वर हमारे साथ बात करते हैं। बाइबल के बिना भी बाइबल का बातों को सीधा ईश्वर हमारे पास, हमारे हृदय में डाल सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर इधर योना के साथ बात किया, तुम निनवे में जाके उधर प्रचार करने का है। दूसरा बात, ईश्वर को निनवे के बारे में पूरा मालूम था। ये पूरा दुनिया के बारे में मालूम, एक एक शहर के बारे में, एक एक गांव के बारे में, उधर क्या हो रहा है, उधर का हालत कैसा है, everything God understands very clearly and God is concerned about that. तीसरा बात इधर है, तीसरा कलम में, जोना arose to flee to Tarshish from the presence of God. The free will of man.
ईश्वर मनुष्यों को एक स्वतंत्र इच्छा दिया है, चुनने का अधिकार दिया है। ईश्वर का बातों के सामने हाँ और ना बोलने का अधिकार एक मनुष्य को दिया है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ये हमसे हटाया, हम जानवर के लेवल में आ जाएंगे। हमें जानवरों से ऊपर ले जाने वाला बात है, ईश्वर हमको एक स्वतंत्र इच्छा दिया है, चुनने का अधिकार दिया है। ईश्वर के बातों के सामने भी हाँ और ना बोलने का अधिकार ईश्वर दिया है। इधर ईश्वर जो बोला निनवे में जाके प्रचार करना, योना मानने के लिए तैयार नहीं था। योना उधर से भागने के लिए कोशिश किया और थोड़े समय तक भागने वाले सोचेंगे हम जीत गया। योना भी ऐसा ही सोचा और जगह मिल गया, टिकट मिल गया, सीट मिल गया, बर्थ मिल गया, आराम से सो रहा था, सब कुछ ठीक था। और मैं इधर एक वार्निंग देना चाहता हूं, शुरुआत में जो माहौल अच्छा है ये देखें, आगे ज्यादा मत बढ़ो, संभालना। ईश्वर सर्वाधिकारी है, सर्वशक्तिमान है। अभी ये मच्छी पकड़ने वाले लोग ये ना हुक डाल के मच्छी पकड़ते हैं। मच्छी आके ये हुक को स्वालोइंग, उसका शब्द क्या है? स्वालो, निकालना। निकालना निकालने के बाद और ये डोरी धीमे से छोड़ देगा। अरे मच्छी क्या सोचेंगे, मिल गया मिल गया, अच्छा हो गया, अच्छा खाना मिल गया। उसी के साथ जाते हैं, थोड़े समय तक जाने को देता है, बाद में जोर से खींचेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा क्या हो गया। ये मैं एक दृष्टांत के लिए दिया है। इधर योना को ऐसा ही हुआ। सूरत में सब कुछ माहौल अच्छा था, जगह मिल गया, पैसा तो है और सीट मिल गया, बर्थ मिल गया, अच्छे सोने का जगह मिल गया, ये सब अच्छा होता। तो बहुत जल्दी परिस्थिति बदल गया। चलिए, आरंभ में जो अनुकूल परिस्थिति देखे, ईश्वर के सामने से भागने वाला, ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर का योजना के विरुद्ध में चलने वाला, बहुत संभालने का है। ईश्वर का मजबूत हाथ कब तुम्हारे खिलाफ में होगा हमको मालूम नहीं। जैसा मैं शुरुआत में बोला ना, मेरा अनुभव से 10 साल उत्तर भारत में जीने के बाद, अरे मुझको ईश्वर के सामने करने के लिए बहुत बहाना था, केवल बहाना था, सत्य था। किराया देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और उस समय मेरा स्कूटर बेच के घर का खर्चा निकालना पड़ा। कुछ पैसा कहां से भी आता भी नहीं है, बहुत तकलीफ के साथ जीवन बिताया हुआ समय। और उस समय मैं सोचा चलो वापस आएंगे, केरला में रहेंगे, किराया नहीं देने का है, और खेती है, थोड़ा जमीन है, इसलिए हमारा जरूरत के लिए जो कुछ खेतर से बना सकते हैं बनाएंगे, ऐसा सब प्लान बना के आया। थोड़े समय के लिए सब कुछ अच्छा था,
ये मैं बताया। आरंभ समय में जो अनुकूल परिस्थिति है, यदि ईश्वर के खिलाफ में जाने वाला, ईश्वर का योजना के खिलाफ में जाने वाला है, ईश्वर का योजना के खिलाफ में जाने वाला है, शायद आरंभ में थोड़े समय के लिए ईश्वर बहुत करुणा के साथ हमारे साथ व्यवहार करेगा। लंबा समय ईश्वर ऐसा नहीं करेगा, ये हमको समझने का। और एक बात इधर है, 4 में हमने क्या पढ़ा है? द लॉर्ड सेंड आउट ए ग्रेट विंड। प्रभु का दास, प्रभु का सेवक प्रभु का आज्ञा के विरुद्ध में चल रहा है, उसका आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पुस्तक में देखेंगे तो हवा उसका बात मानता है, समुद्र उसका बात मानता है, मच्छी उसका बात मानता है, झाड़ उसका बात मानता है, अरे वर्म कीड़ी उसका बात मानता है, जब उसका बात मानता है, सारा सृष्टि उसका मन बातें मानता है। रेकी प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर है, ईश्वर का बातों को नहीं मानता। बाकी दूसरे लोग माने ना माने, यदि एक प्रभु का दास प्रभु का बात मानता नहीं है, वो कितना भयंकर। मैं ऐसा था। उधर से ईश्वर मुझको जो समझाना समझाया, मैं समझने के लिए तैयार था। जो कुछ गलती मेरे जीवन में हुआ उसको मैं ईश्वर के सामने कबूल किया। मैं बोला ये सब छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, हमेशा के लिए मैं वापस आऊंगा, जहां मुझको लेके जाना चाहते हैं मैं उधर रहूंगा, आपका इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं जो बोला हुआ बातें दोबारा बोलना चाहता हूं। बाकी सारा सृष्टि ईश्वर का बातों को मानता है। जिनमें जीवन है, जो जीवन नहीं है, आंधी तूफान समुद्र सब उसका बातें मानता है। और इस पृथ्वी के ऊपर एक ही प्राणी है, उसका बातों को नहीं मानता है, वो मनुष्य है। मनुष्य है तो ठीक है। और प्रभु का सेवक लोग, प्रभु का बेटा बेटी, विशेष करके फुल टाइम वर्कर्स, पीपल लाइक मी, if I don't obey the word of God, don't test the patience of God too much, हमको समझने का है। अभी हम सीधा ये सवालों में आएंगे। पहला अध्याय में 8 सवाल हैं और आखिरी 4 आखिरी अध्याय में और 4 सवालों हैं। आखिरी 4 सवालों में से 3 सवालों ईश्वर ने यूहन्ना से डायरेक्ट पूछा। और पहला अध्याय का सवाल सब जो लोग जहाज के अंदर था, साधारण लोग था, ये जहाज का मालिक, उन लोग सब साथ में मिलके उनको पूछा हुआ सवाल है। इधर 8 सवाल हैं। उसका क्रम में मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं। पहला सवाल 10वां कलम में हमको, अभी मैं जो ऑर्डर बनाया उसमें 10वां कलम में 1 का 10 में पहला सवाल है। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? Why did you do like this? Why have you done this? उसके बाद हम पढ़ते हैं, for the man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Why did he flee from the presence of God?
4 का 2 में वो ईश्वर को बोला है, तुम बहुत दयालु और कृपालु है, मुझको पहले से मालूम था, तुम उनके ऊपर दया दिखाएंगे, कृपा दिखाएंगे। ये योना क्या चाहता था? ईश्वर का कृपा और दया ईश्वर का लोगों के लिए होना, दूसरों के लिए, मेरे लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होना है। आज भी हम भी ऐसा ही सोचते, मेरे साथ ईश्वर बहुत कृपालु और दयालु होकर रहे, दूसरों के साथ उधर ईश्वर को बोलेंगे, उधर कुछ कृपा नहीं दिखाना, दया नहीं दिखाने का। ऐसा बोलते हुए लोग आज भी हैं, हम भी हैं, ऐसा है। ईश्वर ऐसा नहीं है। यूना क्या चाहता था? इस्राएली लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, मेरे लिए ईश्वर कृपालु और दयालु होना अच्छा है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा बात, उन लोगों को कुछ पाप का क्षमा का जरूरत नहीं है, उसको योग्य दंड देने का है, उनको नाश करने का है। ये था योना का मानसीय था। कभी कभी हम भी ऐसा सोचेंगे, इन लोग इतना जो सब हो रहा है दुनिया में, ईश्वर क्यों इनको नाश नहीं करता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर को कर नहीं सकता। ईश्वर को कर सकता है, करना है तो कर सकते हैं। फिर भी ईश्वर लोगों को अवसर देना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। ईश्वर उनको उनका कृपा और दया दिखाना चाहते हैं। ऐसा एक ईश्वर है। समझ लो एक बात, यदि आज से 45 साल से ऊपर ईश्वर मेरे साथ दया और कृपा दिखाया नहीं था, मैं इधर अभी बैठता नहीं था। मेरे जैसा एक खराब बच्चे, लड़का के ऊपर, मनुष्य के ऊपर इतना कृपा दिखाया। ईश्वर आज भी ऐसा ही करते हैं, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद। योना ये समझा नहीं है। तीसरा बात, ये एक यहूदी है, उनको पूछा समय वो ये बोला, मैं एक हिब्रू हूं, इब्रानी भाषा बोलने वाला हूं। वो दूसरे लोगों के पास ईश्वर का संदेश लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये असीरियंस, ये असीरिया का कैपिटल है निनवे। असीरियंस इस्राएल के शत्रु है, उनको कुछ ईश्वर का संदेश सुनाने का जरूरत नहीं है, उनके पास कोई जाने का जरूरत नहीं, ऐसा सोचता था। और प्रॉब्ली 14 बातें हैं, जाएगा तो उसका जीवन को कुछ नुकसान हो सकता है, उनका मन में डर है। कभी कभी हमको भी ऐसा डर है, हम सुवार्ता लेके जाएंगा तो लोग बहुत सवालें पूछेंगे, शायद हमारे साथ उनका व्यवहार बहुत गलत रीति में होगा, इससे हम डरते हैं। मैं भी डरता हूं, हम सबको डर है। ये सब कारण से ये गया। फिर इधर ये लोग क्या पूछा, वाई हैव यू डन दिस? दूसरे लोग कर सकते हुए बहुत गलतियां हमको कर नहीं सकता है, वी कैनॉट। अभी समझ लो, 1 फुट ऊपर से एक आदमी गिर गया, शायद ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और सोच लो 15-20 फुट ऊपर से गिर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हम बहुत ऊपर है, दूसरे लोगों से लेवल से बहुत ऊपर है, ये समझ के जीने का है। हम गिरेगा तो ज्यादा नुकसान होने वाला है। हमको बहुत कुछ चीज करने का, बातें करने का अनुमति नहीं है,
दूसरों के साथ जैसा बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं। हम अलग हैं। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको जल्दी पूछेंगे। पत्रोस गलत जगह में जाके बैठा, उधर बैठे हुए खड़े हुए स्त्रियां उनको पहचान लिया। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा सवाल में हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इधर 6वां कलम में उनको पूछा, वर्स 6। तब माझी उनके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठो और प्रार्थना करो। उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। ओके, ये व्हाट डू यू मीन स्लीपर? अराइज एंड प्रे। एफेसियों का पत्री में एक कलम है, ये सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, यू कैन नोट डाउन। 5:14 में ऐसा लिखा है, ये सोने वालों जाओ और मुर्दों में से जी उठ। Those who are sleeping in the midst of dead people, arise. पूरा दुनिया आत्मिक भाषा में बोलेंगे तो मर चुके, मरे हुए, उनके बीच में विश्वासी सो रहा है। The whole world is like a sinking ship. ये डूबने वाला जहाज में हम सो रहा है, आराम कर रहा है। यह हमारे लिए आराम करने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय है। मैं प्रार्थना के बारे में थोड़ा बातें बोला था, इसलिए दोबारा बोलना नहीं चाहता हूं। बेटर टू प्रे इन द राइट प्लेस इंस्टेड ऑफ प्रेइंग इन द रॉन्ग प्लेस। आई विल से लाइक दिस, बेटर टू प्रे इन द होम देन प्रेइंग इन द हॉस्पिटल। इधर जोना सो रहा था न, ईश्वर दिन रात को क्यों बनाया? दिन में लोग काम करना, रात में आराम करना। ईश्वर का प्लान ऐसा ही था। आज दुनिया में ये सब नहीं हो रहा है, हम जानते हैं, उसका जरूरत ही है, अलग बात है। फिर भी नॉर्मल लाइफ में दिन में काम करना, रात में आराम करना। सो गॉड इज नॉट अगेंस्ट स्लीपिंग। अभी 2-3 बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। स्लीपिंग इज नॉट सिन, स्लोथफुलनेस इज सिन। ईटिंग इज नॉट सिन, ग्लटनी इज सिन। टॉकिंग इज नॉट सिन, gossiping is sin. Resting is not sin, idleness is sin. ये सब मैं हिंदी में भाषांतर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बाइबल में हम जानते हैं 3 लोग गलत जगह में सोया। एक योना, परिणाम हम इधर देखते हैं। दूसरा शिमशोन, परिणाम क्या हो गया? उनका जीवन में ईश्वर का जो सामर्थ था वो चला गया, उसका आंखें निकाल दिया, अंधा हो गया और बांध के रखा, उसका पूरा स्वतंत्रता चला गया। गलत जगह में सोने से, गलत जगह में सोने से नहीं, जाने से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, संभालना। तीसरा व्यक्ति है यूतिकोस। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में पौलुस जैसा बड़ा प्रचार कर रहा था। ये लड़का खिड़की के उधर बैठ के सो रहा था। परिणाम क्या हो गया? He fell down from there, उधर से गिर गया, पूरा मीटिंग डिस्टर्ब हो गया, संदेश बंद करना पड़ा, ये सब हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, पौलुस उधर था, पौलुस उसको वापस जिंदा करके लाया। इसलिए गलत जगह में सोने वाला संभालना।
सोना ईश्वर का दान है, फिर गलत जगह में ये कभी नहीं होना है, संभालने का। तीसरा सवाल, और whose cause is this trouble? verse 8। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है। किसके कारण ये विपत्ति हमारे ऊपर आया है? कुछ विपत्ति घर में होते हैं, चर्च में होते हैं, तो हमको पूछना है ये क्यों हुआ है, हुआ तो इसका कारण क्या है। दाऊद पाप किया, परिणाम क्या हो गया? 4 बच्चे उनके घर में मर गए। और ईश्वर क्या बोला? तलवार तुम्हारे घर से नहीं हटेगा। The sword will not depart from your house. Sinners' sin have consequence. Saints' sins will have more consequence. And servants of God's sins will have much more consequences. Be careful. हम बहुत संभालना है। शिमशोन पाप किया, हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हो गया। और गेहजी मेहमान के पीछे गया, उसको बहुत कपड़ा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, सब मिला। परिणाम क्या हो गया? केवल उसके लिए नहीं, उनके आने वाला पीढ़ियों भी सब लेप्रोसी बीमारी से पीड़ित हो गया। कोढ़ी रोग। इस दुनिया का धन दौलत मिला, पैसा मिला, फायदा क्या है? संभालना। उनके बच्चों, पोतों, पीढ़ियां सब ये भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए। पाप का परिणाम भयंकर है। जैसा मैं बोला, पापी का पाप का परिणाम भयंकर है, पवित्र लोगों का पाप का परिणाम उससे भयंकर है, और सेवक लोगों का पाप का परिणाम उससे ज्यादा है। उसके लिए मैं कुछ दृष्टांत दिया। ये विपत्ति क्यों हुआ? लोग पूछ रहे हैं, ये विपत्ति का कारण तुम है। यदि कोई हमको देखे ऐसा बोलते हैं तो कितना दुख का बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर जॉब? ये बोल के मैं आज पूरा कर देना चाहता हूं, शायद दूसरा दिन बाकी हम देखेंगे। व्हाट इज योर जॉब? उसी कलम में उन लोग पूछा, तुम्हारा काम क्या है? What is the work of a prophet or a preacher or a servant? मेरे सामने बैठे हुए लोगों को बाइबल का थोड़ा जानकारी है, इसलिए कुछ बातें मैं जल्दी बोलना चाहता हूं। मरकोस का सुवार्ता पहला अध्याय में यीशु मसीह अपना पहला शिष्यों को बुलाते समय में ऐसा बोला, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसलिए सेवक का काम क्या है? फुल टाइम वर्कर्स का काम क्या है? लीडर्स का काम क्या है? फॉलो मी, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मनुष्यों को पकड़ने वाला। मनुष्यों को पकड़ना बहुत कठिन काम है, इसलिए यीशु बोला, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। कोई मनुष्य उसके लिए सशक्त नहीं है, ईश्वर हमको सशक्त बनेंगे। पहला बात, एक सेवक का काम क्या है? यूहन्ना 21, 15, 16, 17 में पत्रोस का पुनस्तावन होते समय में यीशु बोला, फीड माई लैम्स, फीड माई शीप।
That is the responsibility of a servant of God. ये भेड़ों को खिलाना है, खाना देना है, तो क्या होना है? हमारे पास खाना होना है उसको देने के लिए। कहां से मिलेगा? ईश्वर का वचन से मिलेगा। ये दूसरा हमारा सेवा है। तीसरा, प्रेरितों का काम 6:4। राजेश भाई थोड़ा पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ओके, उधर खाना बांटने का काम, लोग बोला आप ले लो, बोला नहीं, खाना बांटने का काम, प्रभु के लोगों को खाना बांटने का काम। इतना ज्यादा तकलीफ का बात नहीं है। वो बोला ये भी हम नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है? ये पूरा समय सेवक का काम क्या है? हम 2 बात करेंगे। क्या करेंगे? We will continue in prayer and ministry of God's word. That is the job of a full-time worker. What is your job? God is asking, people are asking Jonah. We have to ask ourselves, what is my job? And few of our brothers who are in the full-time ministry listening me, this is your job. I am telling you from the word of God. This is my job. This is your job. Then Acts chapter 16 verse 10. पढ़िए। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। This is another ministry of full-time workers. God has called us to preach the gospel. This ministry God did not give to the angels. Jesus said to his disciples, go all over the world, preach the gospel. So we understood God has called us to preach the gospel to them. 1 Corinthians 9:22. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। किसी न किसी रीति से एक का उद्धार करें, उसके लिए मैं लोगों के लिए सब कुछ बन गया। कितना भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हुआ, भूखे रहने के लिए तैयार हुआ, खुद मेहनत करने के लिए तैयार हुआ। क्यों? कैसा भी एक आदमी को किसी ना किसी रीति से, ये पौलुस बोल रहा है, ये है एक सेवक का सेवा। ये है ऐसा एक बोझ हमको होना है, कुछ आत्माओं को कैसा भी बचाने का है, कैसा भी कुछ लोग प्रभु में आए, ये हमारा उद्देश्य होना है। कोलोसी 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। To make every man perfect in Christ. We are teaching. We go and preach to people, teach people, believers. Why? After salvation, they have to become perfect in Christ. हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट बन रहा है और परफेक्ट बनने का है। दूसरों को सुवार्ता के द्वारा प्रभु में लाने के बाद उनको प्रभु में सिद्ध करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए सेवा करते हैं।
Usually, what is the ministry of a servant of God? What is your ministry? What is your job? These people are asking. What is your job? Apostles refuse to serve in the temple. They said, we will continue in prayer, reading the word of God. And all these full-time workers who are sitting there to understand what is full-time ministry. What you are doing. What I just read to you. Does it happen with your life? When you preach, teach, how much preparation is done? Do you give quality food to the believers? These are all very important. I wanted to say a few things about the elders, but today there is no time. Probably another day we will see the rest of the questions and then we will discuss more. I have taken 5-7 minutes extra. Sorry for that.